Hello student, myself Surya Prakash Yadav, and today I will start real number for class 10th. In this video, I will solve some NCERT question and some explanation. There's real number. So real number. Okay, this is the first chapter of NCERT, and real number is a collection of rational number and irrational number. Irrational number क्या होता है? Real number is a collection of rational and irrational number. Yeah, in other words, we can say that all number that's are real number. ठीक है, तो इस और रैशनल के बारे में हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है और इरेशनल भी डिस्कस किया है हमने. बट समटाइम इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ए फॉर्म p by q. ठीक है, ए फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q जो रहेंगे क्या? बिलोंग टू इंटीजर. जितने भी मतलब p और q रहेंगे सब क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे और कॉल्ड रैशनल नंबर. नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर दैट कम टू इन आफ्टर डिवीजन, दैट कम टू इन, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग. एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? that is not come to end after some time they are repeated number, so that is called terminating decimal. तो ये सब क्लास 9 में डिस्कस हो गया है नंबर सिस्टम के बारे में, वहाँ पर पूरा फुल डिस्कस किया गया है. तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. फर्स्ट टॉपिक होता है क्लास 10 का इक्विड डिवीजन लेमा. ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th. इक्विड डिवीजन लेमा वी कैन हियर given पॉजिटिव इंटीजर a and b. क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर है a and b. There exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r मतलब r की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0, r इक्वल टू जी ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू 0 लेस देन b. This is also in the form of a division algorithm, and here a means क्या? a is dividend. Here a also in other form a is also called dividend, and b is divisor, and q is quotient and remainder. And so therefore dividend is equal to होता है divisor into quotient and plus remainder. So this is the Euclid division algorithm. Here earlier we have discussed about the class 7th, and this is the called division algorithm. In other form division algorithm, but in class 10th they are proceed. This is Euclid division lemma or Euclid division algorithm. And Euclid division algorithm, Euclid division lemma are used to solve HCF, used to finding HCF. How can you find HCF? Now there one question: use Euclid algorithm to find the HCF of both number 4052 and 12576. So if you want to find HCF, then first of all, since we know that in earlier classes we are finding HCF by the method of the division, so then first of all we are sketch work, and here 12,576, this is the dividend, and divided by 4052. This is the, now we take here 3 left, and here also 3, 4 3 12, 2 3 6, 5 3 15, and 4 3 12.
7 में से 5 यहाँ पे 5 में से 1 गया 420 एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेप रिमाइंडर इज बिकेम्स डिविजर and the divisor becomes dividend 40 and in this next step that will becomes 9 time 0 2 9 ja 18 4 9 ja 36 1 37 and here 2 and 15 में से 8 गया 7 and here 9 में से 7 गया 2. This is cancelled. After this here 420 divided by so 1 time 272 here 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 148 it's 22 148 and 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 1. After this 124 so 124 is divisor and 148 this is the dividend. Next proceed 1 time 124 and here 4 2 and this is the 124 5 time 4 5 20 2 5 10 2 12 this is the 4 and this is 24 and 6. ठीक है. In the division method again I will repeat again. Here this is the 12,576 each divided by 4,052 and 3 times that becomes 12,156. After subtraction that becomes 420 and 420 से क्या करेंगे हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जो डिविजर होगा हमारा this is the divisor and then next step it will becomes dividend and remainder becomes divisor and divided by this and that up to 9 times गया हमारा तो बचा कितना 272 बचेगा हमारा और फिर जो डिविजर होगा this will become dividend and remainder is divisor there 1 time 272 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 1 कैरी करेगा 10 में से 2 गया 8 यहाँ पे 11 बचेगा 11 में 7 गया 4 3 में 2 गया 1 this is remainder and remainder is also divisor and divisor is also dividend. Next step 1 that we divide by 4 so 4 is our SCF but we according to division algorithm since 12,576 is bigger than 4,052 we apply division lemma to 12,576 and 4,052 we get this. अब ये मैंने क्या this is the value of A here this is the value of A and this is the value of B. ये क्या है ये this is the value of A है और दिस इज द वैल्यू ऑफ बी है. तो अब ये जब हम डिवाइड किए तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस और फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज द क्यू एंड दिस इज द आर रिमाइंडर. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप द को डिवी क्या होता है हमारा देखो डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर एंड हियर 3 इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर 420. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. And second step here remainder not becomes 0 again we apply this is the 4052 is a dividend and remainder 420 is a divisor and this is after division it will becomes 9 as a quotient and here 272 is a divisor. So this is the second step. Here remainder not becomes 0 again proceed next step and okay. And after this in next step there this is divisor comes to quotient and remainder comes to divisor and after division that becomes 140 remainder. And next step was 272 this is the divisor and then we becomes
dividend, and the remainder becomes divisor, and this is the remainder. And the next step, there 148 dividend and might becomes divisor, and next step after this it will be finally it becomes 24 and 40. Finally it will be divided by 4, so this is the remainder. At last stage remainder becomes 0, so our procedure are stopped, and finally the remainder has now to become 0, so our procedure stops since the divisor at this stage is 4, so HCF of the number is 4. तो फाइनली 4 जो होगा 4 इज द HCF ऑफ 4 and 24, और 4 and 24 कहाँ से आया, हम कम बैक स्क्वायर करके लिखना चाहेंगे हम, तो ये जो आया 4 और 24 का आया है, फिर 24, तो ये इसको करेंगे तो 124 और 4 हो जाएगा, फिर 140 और 24 का हो जाएगा डिवीजन HCF, और इसी प्रकार 272 और 148 का हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जो HCF होगा 4 हो, ये इसको ऐसे होगा, फिर इसको ऐसे हम कंबाइन करेंगे, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे, तो फाइनली जो HCF इसका, और फिर आफ्टर दिस फाइनली HCF इसका कितना हो गया हमारा 4 ये HCF ऑफ दोस्त नंबर। तो मार्कर के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज दिस नंबर, ओके, एंड in the next part, exercise 1 NCERT exercise 1.1 question number 2, show that any positive odd integer each of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is integer, मतलब कह सकते हैं कि कह रहा है कि any positive odd integer each of the form किस फॉर्म में होनी चाहिए, 6q plus 1 में, 6q plus 3 में, 6q plus 5 सब कुछ any positive integer there exist q and r such that by equal division lemma, therefore by equal division lemma we can say that the a equal bq plus r and the value of r vary from 0 to b. If we put b value 6, then it will becomes a equals 6q plus r and remainder is becomes 0 to 6, मतलब कि r जो होगा greater r equal to 0 and less than 6 होगा. In this case the value of r is 0 1 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटी बनती है। Therefore एक a की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5, ये पॉसिबिलिटी है हमारी आने की। आफ्टर दिस आल्सो अगर 6q plus 1 होता है हमारा, तो यहाँ 2 कॉमन हमने लिया, 3q plus 1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग 2k plus 1 वेयर k1 इज इक्वल टू 3q ले लिया है हमने, यहाँ पे q की वैल्यू क्या ले लिया है 3, ये 3q की वैल्यू क्या ले लिया है k1 ले लिया है, वेयर k1 इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो गया 2k plus 1 के फॉर्म में हो गया। ऐसे ही 6q plus 1 लेते हैं हम, तो ये 6q plus 2, 3 को ब्रेक कर लिया 2 plus 1 में, और फिर यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू क्या है हमारी k2 इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर,
ऐसे ही हम 6q प्लस 5 पे देखते हैं, तो 6q प्लस 4 और प्लस 1 यहाँ पे कर लिया, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, 3q प्लस 2 प्लस 1 हो गया। इसके जगह हमने क्या कर सकते हैं, k3, इन दोनों की जगह हम k3 ले लेते हैं, तो 2k प्लस 2k3 प्लस 1 हो जाएगा, वेयर k3 इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, k3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर। सो क्लियरली 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are of the form of 2k plus 1. ठीक है, where k is some positive integer, since we know that the any of the form 2k plus 1 are an odd integer. Therefore 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not exactly divisible by 2, hence 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 3 5, ये 5 होगा हमारा, दिस इज 5, 6q प्लस ये 5 होगा, आर यानी ऑड इंटीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that of any integer each of the form क्या होने 4q प्लस 1 और 4q प्लस 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। कहने मतलब है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो 4q के प्लस के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इस दोनों फॉर्म में होना चाहिए। शो बाई इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वलिट डिवीजन लेमा, एक वैल्यू क्या लेंगे बी एम, ठीक है, वेयर आर इज लेस greater r equal to 0 and less than b. Put value of b equal 4. After this a की वैल्यू क्या हो गई 4m प्लस r हो गया, where r is greater r equal 0 and less than 4. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 4m प्लस r का होल स्क्वायर हो गया, 4 का तो ये ब्रेक हो जाएगा किसके, here we have a one formula a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2b। अकॉर्डिंग टू अप्लाई दिस फार्मूला एंड ब्रेक दिस इक्वेशन, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, r का स्क्वायर r हो जाएगा और फिर 2 होगा फाइनली स्क्वायर की वैल्यू होगी 16m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 8mr हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड देयर वैल्यू बिकेम्स, वैल्यू जो होगी इसकी r is greater r equal to 0 and less than 4, here value of r is 0 1 2 3, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि 4 से कम होगा, मतलब कि 0 r इक्वल टू 0, ये r इज ग्रेटर r इक्वल टू 0 तो 0 के इक्वल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो 0 1 2 3 ले लेंगे हम इसको। देयर अराइजेस सम केसेस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो केस फर्स्ट इफ r इक्वल 0 लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा 16m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर, 4 कॉमन वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ऑफ q। नेक्स्ट स्टेप में अगर लेते हैं सेकंड केस में r की वैल्यू 1 लेंगे फ्रॉम फर्स्ट में हो जाएगा हमारा 16m स्क्वायर, r स्क्वायर है तो 1 लेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 8m हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो 4m स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2m बचेगा प्लस 1, फिर फाइनली 4q प्लस 1 हो जाएगा, वेयर q की वैल्यू क्या होगी हमारी 4m स्क्वायर
+2m हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा r की वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 16m² है तो +4m हो जाएगा और +16m हो जाएगा। तो 16m² है +4 हो जाएगा +16m हो जाएगा। सब में 4 कॉमन लेते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा। और इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इतने की वैल्यू हम क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। वही चीज़ यहाँ भी इसकी वैल्यू भी हम क्यू लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जब क्यू ले लेंगे हम तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 4q हो गया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। केस केस फोर्थ में देखेंगे हम। केस फोर्थ में देखते क्या है, आर की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 3 लेते हैं। आर की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा हमारा। तो a² की वैल्यू क्या, 16a², एक फिर यहाँ पे r² 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 24m हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 16m² + 24, और 9 को हम ब्रेक कर दिए किसमें, 8+1 में ब्रेक कर दिया हमने। और सब में हम कॉमन लिया 4m² + 6m + 2 हो गया +1, और फिर इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इन दिस वैल्यू वी पुट q, तो देन वी बिकम्स 4q हो जाएगा और +1 हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे q की वैल्यू हमने दिखा दिया ऐसे, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ऑफ a q। तो इस तरह हम देखते क्या है, लास्ट में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं हमारे, या तो 4q आ रहा है अदरवाइज 4q + 1 आ रहा है। हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर each of the form of 4q or 4q + 1। इसी प्रकार ये हो गया। इसी सीक्वेंस में हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यूज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूज इक्वल डिवीजन लेमा to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m +। तो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो इन तीनों के फॉर्म में आना चाहिए। तो जैसे हमने सॉल्व किया वैसे इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाय इक्वल डिवीजन लेमा बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, BQ + R एंड 0 R देन B होगा। आफ्टर दिस पुट वैल्यू ऑफ B क्या होगा, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ B 3। ओके, देयरफॉर A = 3q प्लस, आफ्टर द क्यूब क्या रहा, क्यूब के लिए क्या रहा है तो ऑन कर देंगे तो 3q + R हो जाएगा। तो a³ हो जाएगा हमारा 327q + r³ + 3 × 3³ × r, 3q + r। आफ्टर दिस 27 q² + r³ + 3 3 या 9qr 3q + r and here 27q + r³ plus कैसे हो जाएगा हमारा 3 9 या 27 q² r plus 9 qr²। This is the value of a cube and this will be equation first. Here using one formula a plus b का होल क्यूब, ये होता है हमारा a³ + b³ + 3ab on bracket a plus b using this formula। And now we arise some condition
less than, and this is equal less than 3, because the value of b is 3, so arises here 3. And after this, value of r is 0, 1, 2. Okay, so we have arises some cases. Case first केस r की वैल्यू अगर 0 हो जाती है हमारी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब, एंड वी वांट 9 कॉमन लेंगे हम, तो 3 क्यू स्क्वायर, एंड हियर value of m is 3 क्यू स्क्वायर for some positive integer. And next, case second r की वैल्यू अगर 1 लेते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट पे आएंगे हम, तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब है प्लस 1, और प्लस का हम, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 27 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 9 क्यू, क्योंकि वैल्यू ऑफ आर क्या है हमारी, वैल्यू ऑफ आर 1 है, तो 9 क्यू हो जाएगा एंड 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा. So in this case, here we take 27 q square plus q cube plus 27 q square plus 9q plus 1, and here we take 9 common, and here 3 q square plus 3 q square plus 1, and here 9m plus 1, where m की वैल्यू होगी 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस केस. थर्ड में आएगा हमारा r की वैल्यू 2 लेते हैं हम, तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 क्यूब और प्लस यहाँ पे 2 का है क्यूब हो जाएगा, प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 27 क्यू प्लस 8 प्लस 27 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यूब. तो अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हम कर सकते हैं 8 है, तो इसको हम कर सकते हैं प्लस 8, where we take 9 common, 3q plus 6q square plus 4 plus 8, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 9 प्लस 8 हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा, हो गया. तो कह सकते हैं हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the
फॉर्म 9m plus 1 or 9m plus 8. This is our question. So I will repeat again. Our question हमारा ये था, use include division lemma to show the positive integer of the form. जब आपकी फॉर्म में कह रहा है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करते हैं तो किस फॉर्म में होना चाहिए, वह या तो 9m के फॉर्म में होना चाहिए, या 9m plus 1 के फॉर्म में होना चाहिए, या 9m plus 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं, सॉल्व करते हैं बाई इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं हम, या बाई इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम या बाई इक्वलेट डिवीजन लेमा। यहाँ पे लेमा भी हम कह सकते हैं, समटाइम वी आर राइट डाउन ब्रैकेट में लेमा भी कर सकते हैं हम कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो यहाँ लेमा भी कर सकते हैं। ये ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ई होगा। तो पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे हम। फाइनली ए इक्वल क्या हो गया, 3q प्लस आर हो जाएगा। एंड एक फिर क्या करेंगे, क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ एनी और पॉजिटिव इंटीजर। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर। हमको मालूम है ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे हम इसको, एक इसका क्यूब करेंगे 27 क्यूब हो जाएगा, और ये आर क्यूब हो जाएगा, और फिर ये 3q आर इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर फाइनली हम सॉल्व करके लाते हैं, ए क्यूब की जो वैल्यू होगी हमारी 27q क्यूब हो जाएगा, प्लस आर क्यूब प्लस 27q स्क्वायर आर प्लस 9q आर स्क्वायर। This is the equation first, and their value is r is greater or equal to 0 and less than 3. So our value of r is 0, 1 or 2. 0, 1 or 2. There arises 3 cases because the cases are depend on the value of r. The case first, if r equal 0, then from first यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रखेंगे, दिस इज 0 एंड सो दिस इज 0। सो वैल्यू ऑफ ए क्यूब इक्वल टू जो होगा हमारा 27 क्यूब हो जाएगा, एंड ईयर 9 क्यूब। अब यहाँ पे इसको 9 कॉमन लेंगे, 3q स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको हम क्या ले लेंगे, यम ले लेंगे। इट मीन्स दिस वैल्यू वी टेक यम, तो ये 9m हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकेंड केस, if we take value of r1 from first, तो putting the value of r from first, तो ए क्यूब यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, आर क्यूब था, तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 27 क्यूब और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसको सिंपली अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। वी टेक 9 कॉमन, सब में क्या है, यहाँ पे 9 कॉमन है, तो वी टेक 9 एज ए कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बचेगा प्लस 1, एंड वैल्यू ऑफ दिस वी टेक ऑल द वैल्यू ऑफ दिस इज यम, एंड सो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड नेक्स्ट देयर अराइजेस थर्ड केस, r की वैल्यू अगर हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट अराइजेज, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब, यहाँ पे क्या था, 2 था, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 का क्यूब हो जाएगा, 27q स्क्वायर इंटू आर था, तो आर की वैल्यू 2 है, 9q और आर की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, और फिर यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे हम, और फिर ये वी टेक 9 एज ए कॉमन, 9 इसमें सब में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लिया हमने, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब हो जाएगा हमारा। और वेल अब आफ्टर दिस वी टेक हियर, इन सब की वैल्यू क्या होगी, यम होगी, हम लेते यहाँ पे 9m हो जाएगा और प्लस 8 बचेगा,
तो m की वैल्यू क्या हो गई, 3 की ये ले लिया हमने। हैंस आवर कंजप्शन इज cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। तो मतलब कह रहा है कि एनी किसी भी नंबर का अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो वह या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m plus 1 होगा या 9m plus 8 में होगा। So student, in this way our first exercise is over. If you have any doubt, then write on comment box and you will provide next. Okay.